Our today's topic is pricing strategies. Strategies means to plan. Plan for pricing means to achieve pricing objectives. So pricing objectives we have learned in previous topic where survival, profit earning, sales achieve, image differentiation, etc. So which plan is needed? Let me see one by one how the price are decided or charged for the product which are offered by the marketer. So there are various pricing strategies, and among that one is scheming pricing strategy. Let me take pen. So what is the meaning of scheming? Yes, scheming means charging high premium price for the product. See, a high premium price. Scheming pricing strategy for the classified into two types, and one is rapid scheming price. So scheming means high price, and rapid related to what? It is promotional expenditure. Rapid promotional expenditure, or we can say heavy promotional expenditure. So what is the combination? Rapid scheming का combination क्या रहेगा? High prices and heavy promotional expenditure. And the another type is slow scheming pricing. Again, scheming means high premium price and slow for promotional expenditure, which is slow. Slow means limited. Yes, high prices and limited promotional expenditure. So this is about scheming pricing strategy. Then second strategy is opposite to scheming, that is penetration pricing strategy. Penetration means low price. Penetration pricing strategy further classified as rapid penetration pricing. Again, penetration means low price, and rapid, yes, heavy promotional expenditure. See here combination, low price, heavy promotional expenditure. And another type is slow penetration trading. Same, penetration means low price and slow for limited promotional expenditure. So at the introduction of any product, any pricing strategy can be charged. The third one, standard pricing strategy. Standard means what? Yes, same price charge for the same product which are introduced in different market area, whether rural market or whether urban market. It is always advisable to keep low price in rural market as compared to urban market, but if any company wants to adopt the same price strategy, that is called स्टैंडर्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. कौन से भी मार्केट में जहाँ पे हम प्रोडक्ट अवेलेबल कर रहे हैं तो कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया जाएगा कि ये मार्केट में ये प्राइस होना चाहिए, वो मार्केट के कस्टमर प्राइस सेंसिटिव है तो वहाँ पे लो प्राइस होना चाहिए. ऐसा कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे. सेम प्राइस ऑल ओवर द मार्केट. नेक्स्ट इज प्रोब प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. प्रोब मीन्स टू फाइंड आउट. अगर मार्केट का कोई प्रॉपर स्टडी नहीं किया है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है मार्केट कंडीशन रिलेटेड, तो एट द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट स्टार्टिंग में ही हायर प्राइस चार्ज किया जाता है. और क्या प्रूव करते हैं, फिर उससे क्या फाइंड आउट करते हैं? रिएक्शन ऑफ द बायर्स. बायर्स ये हायर प्राइस पे प्रोडक्ट अडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, ये फाइंड आउट करना है. अगर एक्सेप्ट किया तो फिर हायर प्राइस पे ही प्रोडक्ट कंटिन्यू रखेंगे, सेम प्राइस कंटिन्यू रखेंगे. एंड अगर रिजेक्ट कर दिया तो फिर प्राइस लो करेंगे.
तो कस्टमर का एक्सेप्टेंस प्रूव करने के लिए हायर प्राइस चार्ज किया जाता है एंड देन प्राइसेस एडजस्ट अकॉर्डिंगली। ओके, देन नेक्स्ट है डिफरेंशियल ट्रेड मार्जिन। ओके, तो ट्रेड मार्जिन दिया जा रहा है, तो ये मार्जिन किसको दिया जा रहा है? ट्रेडर को, व्यापारी को, डिस्ट्रीब्यूटर को, मिडल मैन को, राइट। तो जैसे ट्रेड मार्जिन दिया जाएगा तो अकॉर्डिंगली प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, जो प्राइस चार्ज करना है वो भी वेरी हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ट्रेड मार्जिन। लेट वी सी कौन कौन से टाइप के ट्रेड मार्जिन होते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्काउंट और ट्रेड मार्जिन, डिस्काउंट बोलते हैं या फिर ट्रेड मार्जिन बोलते हैं। तो कौन कौन से देखो, क्वांटिटी डिस्काउंट, अगर कोई ट्रेडर बल्क में प्रोडक्ट आपसे ले रहा है मार्केट में से या मैन्युफैक्चरर से, तो बल्क परचेसिंग का उसको डिस्काउंट मिलेगा। देन सीजनल डिस्काउंट, ऑफ सीज़न में भी अगर प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, पुशअप करना है, तो सीजनल डिस्काउंट ऑफर किया जाता है। देन कैश डिस्काउंट, इमीडिएट पेमेंट करने वालों को कैश बेसिस पे अगर गुड्स परचेस कर रहे हैं तो कैश डिस्काउंट दिया जाता है। गुडविल डिस्काउंट, अगर उनका कुछ नाम है, कंपनी में गुडविल है, तो गुडविल डिस्काउंट भी दिया जाता है। देन ट्रेड डिस्काउंट, इंसेंटिव्स देना, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। तो वेरियस टाइप्स के डिस्काउंट ऑफर किए जाते हैं एंड देन जैसे डिस्काउंट दिया अकॉर्डिंगली फिर प्राइस भी एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी अपने पॉकेट से तो एक्सपेंसेस या डिस्काउंट नहीं देता है, जो भी देना है कस्टमर के पॉकेट से। ठीक, नेक्स्ट है ट्रांसफ़र प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। तो ट्रांसफ़र, गुड्स ट्रांसफ़र होता है कहाँ पे? एक सब्सिडियरी से दूसरे सब्सिडियरीज में। तो ऐसे सब्सिडियरीज कहाँ पे है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस है या फिर इंटरनेशनल बिजनेस है, तो जो भी बाउंड्री क्रॉस करते हैं प्रोडक्ट, तो वो कंट्री जहाँ जो बाउंड्री क्रॉस हो रहा है वो कंट्री जो है वो वहाँ पे टैक्सेस इम्पोज करते हैं, कस्टम ड्यूटीज़ इम्पोज करती है। तो उसका इफ़ेक्ट लो करने के लिए ये ट्रांसफ़र प्राइसिंग चार्ज किए जाते हैं। कैसे होता है? जैसे एक बाइंग फर्म होगा, एक सेलिंग फर्म होगा, तो मोस्टली चार्जेस किस पे अपॉइंट इम्पोज किए जाते हैं? यस, सेलिंग बिल पे। जो सेलिंग फर्म है उनके बिल पे चार्जेस इम्पोज किए जाते हैं। तो सेलिंग फर्म जो है वो क्या करेगा? लो प्राइस में गुड्स सेल करेगा। लो प्राइस में गुड्स सेल करेगा मीन्स व्हाट? एट लॉस। और फिर प्रॉफिट किसको हो रहा है? बाइंग फर्म को। और ये कौन है? सब्सिडियरीज है ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के। और पेरेंट, ओवरऑल एक कंपनी का लॉस दिख रहा है, एक सब्सिडियरी का प्रॉफिट दिख रहा है, बट ओवरऑल प्रॉफिट किसके अकाउंट में जा रहा है? पेरेंट कंपनी के, राइट। तो पेरेंट कंपनी के अकाउंट में प्रॉफिट दिखेगा। तो ये इमेज शेयर किया है, वेरियस मल्टीनेशनल कंपनीज है। सो दिस स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाय सब्सिडियरीज ऑफ MNC व्हेन ट्रेड विथ अदर सब्सिडियरीज या फिर पेरेंट कंपनी। तो जनरली सेलिंग फर्म जो है चार्ज करती है लोअर प्राइस, लॉस बेसिस पे वो गुड्स सेल करते हैं बाइंग फर्म को, लेकिन वो बाइंग फर्म कहाँ है? विद इन मल्टीनेशनल ग्रुप की ही बाइंग फर्म होती है। एंड ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफ़र होता है पेरेंट कंपनी के अकाउंट में। तो फर्म के प्रॉफिट को कोई अफेक्ट नहीं होता है। देन नेक्स्ट फॉर्म है डिफरेंशियल प्राइसिंग फॉर डिफरेंट मार्केट स्ट्रैटेजी। डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइस चार्ज करना है, so that depend upon number of factors. Let me see what are that factor. Different pricing for home market. होम मार्केट में गुड्स से सेल किया जा रहा है, ओवरसीज मार्केट में भी अवेलेबल किया जा रहा है, तो होम मार्केट में अलग प्राइस रहेगा एंड ओवरसीज मार्केट में अलग प्राइस रहेगा। सो व्हाट फैक्टर्स आर देयर? सो देयर आर डिफरेंसेस इन एक्सपेंसेस।
तो हर कंट्री जो है वो उसके रूल्स रेगुलेशन इंटरनेशनल बिजनेस के रिलेटेड डिफरेंट रहेंगे। देन उनका डिस्टेंस जो है हर कंट्री का अपने कंट्री से डिफरेंट रहता है, तो अकॉर्डिंगली चार्जेस भी डिफरेंट होते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस रहेंगे, फ्रेट चार्जेस रहेंगे, इंश्योरेंस चार्जेस रहेंगे, एंड ऑल्सो पैकिंग एक्सपेंसेस, वैरायटी ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो इंक्लूड करके प्राइस चार्ज किया जाता है। देन है कॉस्ट। तो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है। तो होम मार्केट में हम हमारे मैक्सिमम गुड्स सेल करते हैं, तो जो मेजर पोर्शन है कॉस्ट का, दैट इज़ टोटल कॉस्ट और वी कैन से फिक्स्ड कॉस्ट, तो वो होम मार्केट से रिकवर किया जाता है। एंड वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ओवरसीज़ मार्केट से रिकवर किया जाता है। तो ओवरसीज़ मार्केट में गुड्स जो है वो लो प्राइस पे अवेलेबल करना पॉसिबल होता है। देन लेवल ऑफ कंपटीशन, अगर स्टिफ कंपटीशन है तो फिर प्राइस कैसा रहेगा, लो प्राइस चार्ज करना है। एंड कोई कंपटीशन नहीं, लेस और नो कंपटीशन, तो हाई प्राइस में मोनोपोलिस्टिक पोजीशन में हम प्राइस चार्ज कर सकते हैं। देन डिमांड सिचुएशन भी प्राइस डिसाइड करता है। मोर डिमांड है ऑब्वियसली हाई प्राइस, एंड नो डिमांड तो मार्केट कैप्चर करना है आपको, तो लो प्राइस पे इंटरनेशनल मार्केट में गुड्स अवेलेबल करना ही पड़ता है। देन एटीट्यूड ऑफ बायर्स, अगर किसी मार्केट में, फॉरेन मार्केट में हमारे प्रोडक्ट के लिए बायर्स का एटीट्यूड निगेटिव है, तो हमें लो प्राइस पे गुड्स अवेलेबल करके देना है, क्योंकि उस मार्केट में हमें एंट्री लेना है। तो एज पर द एटीट्यूड ऑफ बायर्स ऑल्सो प्राइस चार्ज डिफरेंटली। देन नेक्स्ट है ट्रायल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। तो ट्रायल लेना है, प्रोडक्ट हम मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो फिर कस्टमर के एक्सेप्टेंस के लिए ट्रायल लेने के लिए फिर क्या करते हैं, लोअर प्राइस पे गुड्स अवेलेबल करके कस्टमर को इंड्यूस करते हैं टू बाय द प्रोडक्ट। एंड देन व्हेन द डिमांड इंक्रीज, मार्केटर क्या करेगा फिर, ऑब्वियसली डिमांड है तो प्राइस हाई चार्ज करते हैं। द पर्पज इज टू विन कस्टमर एक्सेप्टेंस फर्स्ट एंड देन मेक प्रॉफिट। तो ट्रायल प्राइसिंग मीन्स व्हाट, चार्जिंग लोअर प्राइसेस। देन नेक्स्ट है फॉलो द लीडर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। तो ऑब्वियसली ये भी स्ट्रैटेजी बेनिफिशियल होती है। जो भी मार्केट लीडर है, लीडर कौन होता है, वही जो अपना कॉम्पिटिटर, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बोलते हैं, तो उसका ही प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना है, उसके ही क्लोज बाय अपना प्राइस भी रखना है। सो मार्केटर फिक्स प्राइसेस डिपेंडिंग अपॉन लीडिंग प्राइसेस ऑफ लीडिंग कॉम्पिटिटर। तो कौन सा प्राइस रहेगा, वेरी क्लोज टू दैट ऑफ द प्राइसेस चार्ज बाय द लीडर। देन नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, मीन्स डिफरेंट कस्टमर के लिए डिफरेंट प्राइसिंग। अभी डिफरेंट कस्टमर क्या, कस्टमर सब कॉमन ही होते हैं, राइट, बट सर्टन कस्टमर जो है वो अपने लॉयल कस्टमर होते हैं, तो उनके लॉयल्टी का उनको रिवार्ड मिलना चाहिए, राइट। तो लॉयल कस्टमर्स के लिए स्पेशल प्राइस। देन नेक्स्ट है प्रीडेटरी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। तो ये जो प्रीडेटरी वर्ड है ना, वो एनिमल को यूज़ किया जाता है। प्रीडेटरी मीन्स व्हाट, यस, लीव ऑन किलिंग अदर एनिमल, अदर एनिमल को किल करो और अपना लाइफ चलाओ। तो वैसे ही मार्केट में अदर एनिमल कौन है, वही कॉम्पिटिटर्स। तो कॉम्पिटिटर्स को किल करना है मीन्स कंपटीशन को किल करना है। तो कंपटीशन कैसे रिमूव होता है, वैसे जो भी एंट्री मार्केट में है उसको बैरियर करो। तो कैसे बैरियर करेंगे, बाय कीपिंग लो प्राइस टू आवर प्रोडक्ट। तो फर्म में चार्ज लो प्राइस एंड प्रोवाइड सर्टन सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट। या तो लो प्राइस चार्ज करो या फिर अपने प्रोडक्ट के साथ सर्टन सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट देते रहो। एंड इसका पर्पस क्या है, ये प्रीडेटरी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का पर्पस क्या है, गेन मोनोपोलिस्टिक पोजीशन इन दी मार्केट। मार्केट में मोनोपोलिस्टिक पोजीशन अचीव करना है। अगर आप कंपटीशन ही किल करोगे, आपका प्राइस इतना लो रखोगे
कि अदर मार्केटर को पॉसिबल ही नहीं है कि उसका कॉस्ट ही नहीं रिकवर होगा, तो फिर वो प्रोडक्ट क्यों बेचेगा, राइट। तो प्रीडेटरी प्राइसिंग का पर्पज़ है टू गेन मोनोपोलिस्टिक पोजीशन इन दी मार्केट। तो ऐसा कौन करता है, लार्ज फर्म जो है वो कंपटीशन किल करते, प्रीडेटरी प्राइसिंग स्ट्रेटजी अडॉप्ट करके अपना मार्केट के वो क्या बन जाते हैं, लीडर बन जाते हैं। सो होप सो you have understand these various pricing strategy and things.